KMU खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी और मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट 2024 हम केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट वन है 69 पे और ये है पेपर डी कोड वाला। Which one of the following molecule has a zero dipole moment? So in the given option, alpha is the correct choice. BF3 planar structure रखता है, so as a whole ये non-polar है और इस वजह से इसका dipole moment zero है। The unhybrid p orbital in sp2 hybridization is, जब sp2 hybridization होगी तो हमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे जो एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं और हाइब्रिड p ऑर्बिटल इनको परपेंडिकुलर मौजूद होता है। This is the unhybrid p orbital while these three are sp2 hybrid orbitals. So perpendicular to sp2 orbital delta is the correct choice. 760 torr is equal to dash Pascal. So it is 10 13 25 Pascal. Delta is the correct choice. How many grams of carbon dioxide can be produced by thermal decomposition of 10 moles of zinc carbonate? तो first of all आप अपने लिए balanced equation बना दें। zinc carbonate इसको जब हम हीट करेंगे तो ये दे जाता है जिंक ऑक्साइड एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अब रिएक्शन में अगर हम देखेंगे तो 1 मोल जिंक कार्बोनेट अगर है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अब अगर 10 मोल जिंक कार्बोनेट दिया गया है तो 10 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा बिकॉज 1:1 रेशो में है। अब 10 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास मांगा जा रहा है तो इसको अगर हम मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मास मिल जाएगा। दिस इज 10 एंड मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44, सो वी गॉट 440 ग्राम। दैट इज द चॉइस डेल्टा। Molar heat of vaporization of water is 40.7 kilojoule per mole. Delta is the choice. Distillation under very reduced pressure is dash distillation. It is vacuum distillation. Delta is the choice. The example of metallic solid in the given is copper is a metal, so it has metallic solid. Boron metallide, carbon non-metal, silicon is a metalloid. When a crystalline substance conducts current in one direction but not through other direction of the crystal, this property is anisotropy. Anisotropy is the property which change with the direction. Forward reaction is the one that is very slow at the beginning, no. Reacts to form reactant, no. Speed up gradually, no. That is delta. Take place from left to right as given in the chemical equation. Delta is the correct choice. How many moles of sodium chloride are produced from 16.5 gram of HCl according to the neutralization reaction? अच्छा, given जो मास है इसको first of all moles में convert करें तो ये 16.5 ग्राम divided by molar mass of hydrochloric acid that is 36.5. इस पे ये divide होके आपको मिल जाएगा 0.452 moles. Now, according to the balance equation, 1 mole of HCl is producing 1 mole of sodium chloride. अब अगर हम 0.452 मोल लेते हैं तो इतने मोल ही सोडियम क्लोराइड बनेगा एंड द आंसर इज मैचिंग टू बीटा। In the production of sulfur trioxide from sulfur dioxide and oxygen, the yield of sulfur trioxide is increased by acha. If you remember the equation, sulfur dioxide reacts with oxygen producing sulfur trioxide. बैलेंस कर दें इक्वेशन को। अब यहाँ पे ये बैलेंस हुआ और रिमेंबर दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अब अगर हम सल्फर ट्राइऑक्साइड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाना चाहते हैं तो एडिंग कैटलिस्ट का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। एडिंग सल्फर डाइऑक्साइड यस, जब हम रिएक्टेंट डालेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा और मोर प्रोडक्ट बनेंगे। इंक्रीजिंग टेम्परेचर नो, क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर हमने कम रखना होगा। रिमूविंग ऑक्सीजन नो, रिएक्टेंट कैन नॉट बी रिमूव्ड, सो द करेक्ट चॉइस इज बीटा। Consider nitrogen gas reacting with hydrogen gas producing ammonia gas and the forward direction is exothermic minus 92.46 kilojoule per mole. The optimum temperature in degree Celsius to produce ammonia is, अच्छा ये वो याद रखने वाला है, 450 degree Celsius इसका optimum temperature होता है, that is beta. The unit of Kc for the system PCl5 gives PCl3 and chlorine gas. अच्छा, unit find करने के लिए आपको equilibrium constant expression लिखना होगा। प्रोडक्ट जो है वो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन गैस डिवाइडेड बाय द रिएक्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। वैल्यूज इसमें लगा दें। ऊपर जो PCl3 है तो वो है मोल पर डीएम क्यूब और इस तरह से जो क्लोरीन है दैट इज़ आल्सो मोल पर डीएम क्यूब और डिवाइडेड बाय जो PCl5 है तो वो भी मोल
पर डीएम क्यूब। अब अगर आप देख लोगे ऊपर वाला 1 मोल पर डीएम क्यूब और नीचे वाला मोल पर डीएम क्यूब हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं, तो ऊपर में बच जाएगा मोल per dm cube. So this is that unit. So mole per dm cube, we are getting beta choice. For a first order reaction A to B, the rate constant is 0.0458 per second. Calculate rate of the reaction if the concentration of reactant is 0.35 mole per dm cube. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेट इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो रेट इक्वल्स K इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A पावर 1, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर उन्होंने मेंशन किया है। अब रेट कैलकुलेट करने के लिए तो रेट इक्वल्स K की वैल्यू दी गई है 0.0458 पर सेकेंड और A का जो मोलर कंसंट्रेशन है वो है 0.35 मोल पर डीएम क्यूब। अब इनको मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाएगा इसका रेट, जो इसका रेट होगा। कैलकुलेटर से मैं कर चुका, तो 0.01603 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड इसका यूनिट हो जाएगा एंड वी आर गेटिंग चॉइस चार्ली। A reaction is first order with respect to A and second order with respect to B. The rate equation is first order with respect to A, तो A का पावर होना चाहिए 1 और second order with respect to B, तो B का पावर होना चाहिए 2. So we are getting delta choice. What mass of aluminum oxide is produced from 18.5 gram of aluminum metal when it reacts completely with oxygen gas according to the following equation? First of all, जो given mass of aluminum है इसको moles में convert कर दें, तो वो convert करने के लिए we are getting the given mass in gram divided by molar mass of aluminum is 27, हो जाएगा 0.685 moles. Now come to the equation. 4 moles of aluminum from the equation giving us 2 moles of aluminum oxide Al2O3. Now 0.685 मोल। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए स्टाइक्योमेट्री में 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम हाफ होके 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड दे रहा है, तो इस तरह से जो ये गिवन मोल हैं ये भी हाफ होके हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड दे जाएंगे। तो इसको अगर हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.342 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। 4 मोल हाफ होके 2 बने, 0.685 हाफ होके 0.342 बना। अब वो मास मांग रहे हैं हियर मास, तो इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो 0.342 मल्टीप्लाइड मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड 102 इक्वल्स 34.88 and we are getting this one 34.9, यानी जब हम उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 34.9, that is Charlie. Calculate the work done when 1 mole of an ideal gas expands from 15 cubic decimeter to 20 cubic decimeter against a constant external pressure of 2 atmosphere. Okay, work done जो है W equals P delta V. Now it is expansion, तो इस वजह से ये होगा work done by the system and we will take it is negative. अब इसमें वैल्यूज लगा दें तो नेगेटिव और प्रेशर दिया गया है 5 मल्टीप्लाइड चेंज इन वॉल्यूम 15 से 20 क्यूबिक डेसीमीटर हो गया है, तो 5 डेसीमीटर क्यूब का चेंज आ गया है। और सॉरी प्रेशर जो है वो 2 है, सॉरी आई हैव रिटन 5। ओके, नाउ 2 5 10, सो वी आर गेटिंग -10 atm dm cube is the answer and which is matching to alpha choice. When 1 mole of ice melts at 0 degrees Celsius and a constant pressure of 1 atmosphere, 6025 joules of heat is absorbed by the system. The molar volume of ice and water are 0.020 and 0.01 at cubic decimeter respectively. Calculate delta E. अच्छा, अब delta E find करने के लिए we have first law of thermodynamics that change in internal energy equals Q plus W. First of all, Q तो दिया गया है 6025 joules. वर्क डन हमने मालूम करना होगा। वर्क डन जो है इक्वल्स टू P डेल्टा V। तो प्रेशर जो दिया गया है दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे 1 लगा दें atm और मल्टीप्लाइड चेंज इन वॉल्यूम, सो 0.020 यानी जो आइस का वॉल्यूम था वो कम हो गए 0.018 क्यूबिक डेसीमीटर हो गया है, तो चेंज इन वॉल्यूम जो हमारे पास आया दैट इज 0.002 dm
क्यूब। ओके, तो ये हमारे पास वर्क डन हुआ W इक्वल्स 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होके तो 0.002 ATM डेसीमीटर या क्यूबिक डेसीमीटर। अच्छा, अब वर्क डन पॉजिटिव है क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, सो वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है, नॉट बाय द सिस्टम, तो इस वजह से पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी। यहाँ पे एक क्लू दिया गया है कि 1 DM क्यूब मल्टीप्लाइड ATM इज इक्वल टू 101.33 जूल्स। तो इसको अगर हम जूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसी से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास ये जूल में वैल्यू आए। तो जूल में जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे W इक्वल्स 0.202 जूल्स। अब जाके W की वैल्यू यहाँ लगा दें तो प्लस 0.202 जूल्स। दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 6025.20, that is 6025.20 joule, so matching to delta choice. One slice of bread with a tablespoon of peanut butter on it contains 20 gram carbohydrates, 10 gram proteins and 9 gram fat. Calculate total energy consumed in this intake. Okay, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है वो 4 कैलोरी एनर्जी देता है। इसी तरह 1 ग्राम प्रोटीन जो है वो भी 4 कैलोरी एनर्जी देता है, और जो फैट है तो वो 1 ग्राम अगर हो तो 9 कैलोरी एनर्जी देता है। अब कार्बोहाइड्रेट 20 ग्राम है तो 20 मल्टीप्लाइड 4 बिकम्स 80 कैलोरी, और ये 4 कैलोरी है, और दिया है 10 ग्राम तो इट बिकम्स 40 कैलोरी, और ये 9 है मल्टीप्लाइड 9 ग्राम दिया है फैट तो 9 में 81 कैलोरी। इनको अब अगर हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 201 कैलोरी। अगर हम किलो कैलोरीज करेंगे तो किलो से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलो कैलोरी, सो द चॉइस इज चार्ली। डेल्टा H कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली बाय अप्लाइंग, तो अप्लाइंग हम उसको हिसिस लॉ से इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चॉइसेस दूसरे पेज पे होंगे। गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, so here is the Hess's law, that is delta. The heat of sublimation of potassium is 98 kilojoule. The heat of distillation bromine gas here, the ionization energy of potassium, the electron affinity of bromine, and the heat of formation. Calculate the latest energy of potassium bromide. So it is Born-Haber cycle, जिसमें जो heat of formation है that is delta H naught F equals heat of सब्लिमेशन जो ब्रोमीन का है तो वो अच्छा बस वैल्यू इसमें लगा देता हूँ। ये जो है हीट ऑफ फॉर्मेशन इज -40.8 इक्वल्स, अब इसमें जो हीट ऑफ सब्लिमेशन है वो हो जाएगा 98 किलो जूल, प्लस उसके बाद हीट ऑफ डिस्टिलेशन ऑफ ब्रोमीन, तो ब्रोमीन जो है वो गैस होगा, तो ये जो हीट ऑफ डिस्टिलेशन है हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, और 2 पे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 मिल जाएगा। सो आई एम डूइंग विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। जब इसको मैं 192.5 divided by 2 becomes 96.25, तो ये हुआ 96.25। उसके बाद है प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो 414 किलो जूल, और द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो है माइनस, तो -334.7 किलो जूल, और उसके बाद हमें मिल जाएगी लेटेस्ट एनर्जी जो हम इनडायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। इन सब को आपस में ऐड करके यहाँ से माइनस करेंगे, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो -405.8 इक्वल्स गेटिंग +273.55 प्लस लेटेस्ट एनर्जी। अब ये यहाँ से आके माइनस हो जाएगा तो -405.8, ये लेफ्ट पे आके -273.55 इक्वल्स टू लेटेस्ट एनर्जी। ये इससे माइनस होके हमें लेटेस्ट एनर्जी मिलेगी, जो वी आर गेटिंग द लेटेस्ट एनर्जी -679.35 एंड वी हैव द चॉइस -679.35, दैट इज अल्फा। Which of the following is a strong electrolyte in solution? Acetic acid weak acid है, ammonium hydroxide weak base है, carbonic acid weak acid है। So potassium iodide is a strong electrolyte because it has ionic nature और ये ज़्यादा ionize होगा। When 4 gram of magnesium was heated in excess of oxygen, calculate the theoretical yield of magnesium oxide. First of all, balance chemical equation में अगर हम लिखेंगे तो magnesium reacts with oxygen giving magnesium oxide, और फिर जाके इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे ये इसका बैलेंस्ड इक्वेशन हुआ। अब जो है 4 ग्राम मैग्नीशियम है
तो उसको आप मोल्स में कन्वर्ट करें, तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द मैग्नीशियम, दैट इज 24, गिविंग अस 0.16 मोल्स। अच्छा, अब बैलेंस्ड इक्वेशन में 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर ये 0.16 मोल हो जाएगा तो इस तरह से 1:1 रेशो में है, सो 0.16 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, दैट इज 0.16। अब वो कह रहे हैं कि मास मालूम करें, मास में तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोलर मास है इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, सो मल्टीप्लाइड विद दी मोलर मास, दैट इज 40, और अब ये मल्टीप्लाई होके हमें मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा 6.4 ग्राम। सो वी आर गेटिंग हेयर 6.6 ग्राम। अगर हम एग्जैक्ट मासेस लगा दें तो ये 6.6 ग्राम ही हमें मिलेगा। डेल्टा इज द चॉइस। The electrode potential of standard hydrogen electrode is chosen as 0 volt. Beta is the choice. Electronegativity of aluminum is approximately equal to that of, okay, यहाँ पे देखें लिथियम है, उसके साथ बेरिलियम, यहाँ पे है सोडियम, नेक्स्ट इज मैग्नीशियम, अगेन बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। तो रिमेंबर, सेकंड पीरियड का किसी ग्रुप के पहले मेंबर नेक्स्ट ग्रुप के थर्ड पीरियड के मेंबर के साथ कुछ रिलेशनशिप होती हैं जिसको डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। तो इस तरह से एल्यूमिनियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो वो सिमिलर होगी टू बेरिलियम, सो दैट इज बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाई मेटल फॉर्म्स ओनली नॉर्मल ऑक्साइड? तो लिथियम जो है वो सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बना सकता है। Third period element that initially reacts rapidly with oxygen to form a protective oxide coating that prevents further reaction is, that is aluminum. Copper 2+ salt solution is blue in color due to transition of electron, that is d-d transition. जो visible light है तो वो हमें d-d transition में मिलेगा। Potassium ferrocyanide is which type of salt? So it is a complex salt. Name of ketone functional group, that is carbonyl group. Carbon double bond O, this group is known as carbonyl group. Pyridine belongs to which class of organic compounds? So it is heterocyclic because in pyridine you will get a nitrogen atom. This is why it is a heterocyclic. Which of the following elements cannot be detected directly in a given organic compound? So oxygen cannot be detected directly. The homolytic fission of carbon-hydrogen bond in an alkene results in the formation of free radicals, that is alpha. Addition of HBr to isobutylene mainly gives, so Markovnikov rule से ये follow होगा. Look at this, this is isobutylene, double bond CH2 and here is a CH3. When we are adding it HBr, so remember, the positive part of the reactant will be added to that carbon having more hydrogen atoms, so H will come to CH2 and bromine will attach to this carbon. As a result, we will get this compound C single bond CH3, here is CH3 and here is bromine. So we are getting a tertiary butyl bromide, that is delta. Dehydrohalogenation of alkyl halide is carried out in presence of, सो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन है और एलिमिनेशन रिएक्शन हम अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में करते हैं। अल्फा इज द करेक्ट चॉइस। द पीकेबी ऑफ एन प्रोपाइल अमीन इज, भाई याद रखने वाला क्वेश्चन है, एंड दैट इज 3.32 चार्ली। द कार्बन एटम कैरिंग पॉजिटिव चार्ज एंड अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स और ग्रुप्स इज कॉल्ड, दैट इज नोन एज ए कार्बोकेटाइन because it has a positive charge. और अगर 3 कार्बन एटम है तो टर्शरी कार्बोकेटाइन, तो यहाँ पे कोई टर्शरी ऑप्शन नहीं दिया गया, सो इट इज ए कार्बोकेटाइन। Which of the following has the highest boiling point? तो इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड एन प्रोपाइल अल्कोहल हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि एन प्रोपाइल अल्कोहल में 1 2 3 और यहाँ पे OH अटैच्ड है, इसमें ब्रांचिंग नहीं है, तो जितना ब्रांचिंग बढ़ेगा अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में 1 2 3 यहाँ पे OH मौजूद है तो एक ब्रांच आ गया है। अब टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में चूंकि अल्काइल ग्रुप बढ़ गया है, बट बिकॉज ऑफ द इंटेंस ब्रांचिंग मालिक्यूल एक दूसरे से दूर हो गए हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा। द रिएक्शन ऑफ एन अल्कोहल विद सोडियम प्रोड्यूसेस अल्कोक्साइड, दैट इज कोई भी अल्कोक्साइड हो तो वो प्रोड्यूस होता है। बीटा इज द चॉइस। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड्स बनते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनते हैं और टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते।
Which aldehyde is more reactive towards nucleophilic addition? Remember, aldehyde में alkyl group double carbon double bond O and this one. ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक इजी नहीं हो पाता। तो इन सब में से अगर हम देखें HC डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है, दिस इज़ अ वेरी वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम, तो इस वजह से ये सबसे मोर रिएक्टिव होगा, विच इज़ नोन एज फॉर्मल्डिहाइड या मीथेनॉल। चॉइस चार्ली। एसिटिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस। अच्छा, ऑप्शन में जाने से पहले एसिटिक एसिड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं अगर उनकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो एसिटिक एसिड प्रोड्यूस यानी पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि उन्होंने ऑप्शन में हमें क्या दिया है। तो ऑप्शन में अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स को देखें तो उसमें डेरिवेटिव्स में मिथाइल साइनाइड हमें मिलता है, दिस इज़ CH3 बॉन्ड CN, और इसकी हाइड्रोलिसिस एसिड हाइड्रोलिसिस करने से एसिटिक एसिड बन जाएगा COOH और प्लस एमोनियम क्लोराइड एट्सेट्रा। तो यहाँ पे डेल्टा इज़ द करेक्ट चॉइस। प्रोटीन प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन हैज़ डैश स्ट्रक्चर, सो इट हैज़ क्वाटर्नी स्ट्रक्चर। In competitive inhibition, the inhibitor competes with substrate to bind to the active sites of enzyme. तो substrate से पहले inhibitor enzyme के साथ अटैच हो जाता है, तो मुकाबला होता है substrate का और inhibitor का कि enzyme से अटैच हो जाएं। How many moles are there in 60 gram of sodium hydroxide? Look at this, अगर sodium hydroxide का मोलर मास हम मालूम करेंगे तो ये हो जाएगा 40 ग्राम। अब उन्होंने दिया है 60 ग्राम, तो 40 ग्राम जो है वो 1 मोल होता है, और जब ये 60 ग्राम हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 60/40, और इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से ये ख़त्म हुआ, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, सो यू गॉट 3/2 एंड 3/2 इज़ 1.5 मोल। So there is no choice matching to 1.5. The choices are not correct. Heating 28.8 of copper carbonate in a crucible produce 13.9 gram of copper oxide. What is the percent yield of copper oxide? तो remember, percent yield find करने के लिए हमें चाहिए actual yield, AY लिख देता हूँ, divided by theoretical yield, TY multiplied 100. अब actual yield 13.9 दिया गया है, और theoretical yield अब हम balanced chemical equation से मालूम करेंगे। तो अगर हम कॉपर कार्बोनेट ले लें, इसको हीट करें, तो ये कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, द रिएक्शन इज़ बैलेंस्ड। 24.8 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट, अगर इसको हम 124 पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 मोल। 0.2 मोल से 0.2 मोल कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, और अब कॉपर ऑक्साइड का जो मोलर मास है दैट इज़ 80, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएंगे इसके ग्राम्स। तो ग्राम में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हमें 2 8 16, तो 16 ग्राम हमें मिल जाएंगे। अब एक्चुअल यील्ड 13.9 है, डिवाइडेड बाय 16 इज़ द थ्योरेटिकल यील्ड, मल्टीप्लाइड 100, तो ये करके हमें परसेंट यील्ड मिलेगा 86.87%, एंड द चॉइस सी इज़ देयर। Efficiency of a chemical reaction can be checked by calculating, so by calculating percent yield, तो इससे हमें एक इक्वेशन की या केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी का पता चलता है। Actual yield will reach the ideal theoretical value if percent yield of the reaction is 100. अगर हम 100% लेंगे तो फिर वो actual yield जो है theoretical yield के बराबर होगा, that is D. Which of the following subshell does not exist? 1s exist करता है, और फिर P जो है वो सेकंड शेल में अपीयर होता है, तो 1p जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता। बाकी 5d भी मौजूद होता है, 6f भी है, बट 1p डज नॉट एग्जिस्ट। द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज ज़ीमन इफेक्ट। चॉइस डेल्टा। विच एलिमेंट हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैस नोटेशन? क्रिप्टॉन, 5s2 एंड 4d2। ओके, अब यहाँ पे देखें, डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अब यहाँ पे सिलीनियम जो है ये डी ब्लॉक का नहीं है, स्ट्रोंटियम ये भी डी ब्लॉक नहीं है, ये पी ब्लॉक का है, और ये जो है एस ब्लॉक का है। ज़िरकॉनियम और मोलिब्डेनम, इनमें से अब ये एक होगा। तो यहाँ पे 36 इलेक्ट्रॉन क्रिप्टॉन में समा गए हैं, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2, सो वी आर गेटिंग 40 इक्वल्स 42। तो 42 जो है 42 एटॉमिक नंबर हमें मोलिब्डेनम का मिलेगा, सो अल्फा इज द चॉइस। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट in the electron pair, total number of electron pair present in valence shell of the central atom in water.
वाटर में जो सल्टन एटम है दैट इज ऑक्सीजन हैविंग 2 लोन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर्स विद 2 हाइड्रोजन आइटम्स। तो इस तरह से टोटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं दे आर 4। चॉइस चार्ली। व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, इधर से ही कैलकुलेट करते हैं और जाते हैं ऑप्शंस की तरफ। कैल्शियम कार्बोनेट अगर 1 मोल होगा तो इस पे 40 ग्राम कैल्शियम प्लस 12 एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एंड प्लस 16 3 48 48 ऑक्सीजन, कुल मिला के you will get 100 gram. So this is 1 mole of calcium carbonate. So the choice is choice C. Which one of the following molecule has a pyramidal structure? Pyramidal structure, ammonia, ये आपको pyramidal structure देगा जिसमें nitrogen with a lone pair pushing the 3 bond pairs downward giving a pyramidal geometry. So this is delta. So that's all from the Khyber Medical University and wishing you all the best, dear students.